हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ विद अकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मैथमेटिक्स एंड हाउ हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। लॉट ऑफ थिंग्स आई डिस्कस व्हेन आई फ्री, आई गेट टाइम। सो अभी मुझे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि सर फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म डिस्कस कर दीजिए। और वो क्या होती है वो समझ नहीं आ रही है, उसका प्रूफ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं ये लेक्चर बेसिकली इन द बिहाफ ऑफ वन स्टूडेंट रिक्वेस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसका हम प्रूफ कैसे लिखते हैं। और that is also important for the graduation students for your exam purpose, and as well for the algebra understanding. Okay, so this is a good, very good request, and let us discuss this theorem. ओके, तो हम पहले समझेंगे कि एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है और कैसे काम करती है, एंड देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द प्रूफ। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन। Okay, so I have already written here the fundamental theorem on homomorphism of groups. Okay, homomorphism we know about the homomorphisms कि homomorphisms क्या होते हैं कि a mapping is said to be homomorphism if that preserves the composition. What meaning of the composition? If I am just having f from suppose that g to g dash, okay, and इस ग्रुप का जो ऑपरेशन है इफ दिस इज ओ, एंड इस ग्रुप का ऑपरेशन अगर स्टार है, एंड वी हैव टू एलिमेंट ए एंड बी in G, okay, and you operating both, that will be also the element of G. And if you are applying F on this element, okay, so that will be equal to FA. FA will be the element of G dash star F of B. So this should be preserved, है ना? And clearly this A and B belonging to G, then this FA and FB will be the member of जी डैश। ओके, सो दिस थिंग प्रिजर्व करता है तो उसे होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर वही मैपिंग वन वन ऑन टू हो जाती है तो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। इन दैट केस जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, और जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम होती हैं विद इन टू आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप। ओके, तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि हमारी थ्योरम कह क्या रही है। तो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो क्या कह रही है? let G and G dash be two groups, okay, and F is G to G dash a homomorphism of F, है ना? F एक homomorphism है ऑन टू G dash। तो यहाँ पर ऑन टू वर्ड इसलिए यूज करा गया है कि जो G dash है that is homomorphic image of F. It means this is somehow you can say this is F, here we are taken this is onto function. Onto function means this is all the elements of G dash is associated with any one of the element from G. Okay, that is meaning of the onto. So in this is written like this. Okay, with the kernel K, and K is the kernel of the function F. Okay, then the quotient group G over K will be isomorphic to G dash. This is symbol for the isomorphism. This is meaning of isomorphism. Isomorphic to G dash, that you can say G over K is the isomorphic to G dash. Here G over K is the quotient group of G with this K, kernel K, है ना? Kernel K is the subset of G, we know that, and this is also a normal subgroup। हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बहुत सारे थ्योरम्स। अगर आप ले पिछले थ्योरम्स हमारे देखे होंगे तो हमने रिकॉर्ड करे हैं एक आधा लेक्चर उसके ऊपर। तो यू कैन विजिट एंड सी कि हमारे पास जो कर्नल होता है, कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म इज अ यू कैन से नॉर्मल सबग्रुप। ओके, सो ये हमारा थ्योरम है। तो अगर इसको हम अपने शब्दों में बोलें, अभी तो लैंग्वेज लिखी हुई है उसके आधार पर हम देख रहे हैं। इफ वी कैन go here, so we can see कि if this is f from g to g dash, okay, and I'm not saying this is on to at all, we are not saying here,
So this is homomorphism. Okay, so what they are saying is this because you know that is kernel of F is the subset, yeah, you can say subgroup. It is subgroup of G. Yeah, also we have this is a normal subgroup of G. Okay, so this kernel is a subgroup. So with the respect of subgroup we can able to find a quotient group, है ना? हमें पता था हम G over H हम करते थे, तो this is the something the collection of all the cosets like this, है ना? Such that X is belonging to G, तो this is collection of all the cosets, है ना? तो वो जो cosets का collection होता था, that is your G over H. Okay, so we are going to, so this is collection, this is called quotient group. Okay, so this is kernel of F. अब यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, तो kernel of F is there is a subgroup, so we can have a quotient group, है ना, like this kernel of F. Okay, and that will be isomorphic to image of F. इमेज ऑफ एफ, और यहां पर इन्होंने ऑन टू बोल दिया है, तो इमेज ऑफ एफ विल बी इक्वल टू जी डैश, दिस विल बी इक्वल टू जी डैश. ओके, सो हमें ये चीज प्रूव करना है, दिस थिंग वी हैव टू प्रूव, कि हमारे पास अगर होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश, देन वी हैव टू प्रूव दिस थिंग कि जी ओवर कर्नल ऑफ एफ विल बी आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ, है ना? इमेज ऑफ एफ मींस हियर जी डैश. सो लेट्स बिगिन आवर प्रूफ, है ना? हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सिंपल है, दैट इज नॉट वेरी टर्म, बस वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म. तो आई थिंक कि समझ आ गया कि हमारे पास एफ एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी से जी डैश पे, और होमोमॉर्फिज्म तो उसका कर्नल भी होता है, हर एक मैपिंग का कर्नल भी कैन एबल टू डिफाइन. तो कर्नल जो होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच मैपिंग टू आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव अनदर सेट. ओके, तो अगर कर्नल की हम बात करें, यहाँ पर हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं. What is kernel? Kernel of F is basically elements X from G such that this is Fx is equals to E dash. Okay, E dash means identity. Here E dash is belonging to G dash. This is identity of G dash. तो वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो जो हमारे पास आइडेंटिटी पे मैप होते हैं, है ना? अनदर सेट के आइडेंटिटी पे मैप होते हैं. अच्छा, एक चीज और कि हमने ये भी पढ़ा है कि जी की आइडेंटिटी, ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज के थ्रू उसके दूसरे सेट के आइडेंटिटी पे ही मैप होता है. इट मींस दिस इज ऑलवेज अ नॉन इम्पटी सेट, दिस इज नेवर बी इम्पटी, because identity is always belonging to the kernel of it. It will be always will be there. Okay, so this is the some basic preliminaries जो हमें जाननी थी. कर्नल ऑफ एफ, होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब होमोमॉर्फिक फंक्शन, उसकी जो इमेज सेट होता है, उसका जो रेंज सेट होता है, दैट इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज, है ना? तो दिस इज द फैक्ट. तो यहाँ पर जो होमोमॉर्फिक इमेज है पूरा पूरा जी डैश ही ले रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम इसको प्रूव करेंगे, है ना? एक एक चीज को देखेंगे. तो आई होप समझ में आ गया है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ, आई अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, है ना? तो एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, देन भी हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे. तो ऑब्वियसली बात है, जी से जी डैश के ऊपर एक होमोमॉर्फिक इमेज है, एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है. इन दैट केस द जी ओवर के इज द कर्नल, तो जी ओवर के क्वेश्चन ग्रुप जो बनेगा दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश. तो इट विल बी हैपन, है ना? इट मींस जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश. सो लेट्स प्रूव. तो हमें क्या प्रूव करना है? हमारे पास क्या है? एक होमोमॉर्फिक इमेज, हमारे पास एक एक कह सकते हो होमोमॉर्फिज्म है ना? उस होमोमॉर्फिज्म को माइंड में रखते हुए हमें यह प्रूव करना है कि जो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा जी ओवर के, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश. तो हम कैसे प्रूव कर पाएंगे? इट मींस जी ओवर के टू जी डैश देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म, तभी तो हम कह पाएंगे कि वो आइसोमॉर्फिक है.
तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा हमको फंक्शन मिल जाए जो कि होमोमॉर्फिज्म हो, साथ साथ में वन वन ऑन टू हो। होमोमॉर्फिज्म का मतलब वो हमारी जो कंपोजिशन है उसको प्रिजर्व करता। ठीक है, तो ये चीज हमें काम करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे और उसको समझते हुए लिखेंगे। सो लेट जी। ओके, तो यहाँ पर जो जी डैश है दैट इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एफ। सो लेट वी कैन राइट हियर। पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। ओके, सो लेट g dash here, g dash I'm taking be homomorphic image of a group, of a group G. Okay, and here, and you can say FV the corresponding homomorphism. Homomorphism. Okay, so तो क्लियरली यू कैन से, क्योंकि हमने जी डैश को ही होमोमॉर्फिक इमेज ले लिया है, इसका मतलब देयर विल बी ऑन टू, एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। तो क्लियरली यू कैन से आई एफ इज अ homomorphism of G onto G dash. Got it? Okay. Okay. So let K be the kernel. तो कैपिटल K से डिनोट करते हैं, तो let कैपिटल K बी द कर्नल। तो जो भी आप नोटेशन यूज कर रहे हैं, जो भी सिंबल्स यूज कर रहे हैं, यू विल हैव टू डिफाइन फर्स्ट। जब आप कभी भी प्रूफ को लिख रहे हो तो आप एक एक चीज को डिफाइन करिए कि के को हमने कर्नल के से डिनोट करा है, या के ऐसे भी कर्नल को लिख सकते हैं। वी कैन आल्सो राइट कर्नल इन दिस वे, कर्नल ऑफ एफ। तो ऐसे हम भी लिख सकते हैं के आर एफ, ऐसे लिख सकते हो। बट वी हैव जस्ट डिफाइंड कैपिटल के बी द कर्नल of this homomorphism, this homomorphism. Okay, then capital K is a नॉर्मल सब ग्रुप। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो कर्नल होता है दैट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एंड कैसे डिफाइंड है कर्नल? वी नो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी which is mapping to the identity of the g dash. So this says that fx is just equal to e dash, है ना? You can just mention it, where e being dash being identity of g dash. Got it? So now we have to prove. Now we have to prove. क्या प्रूव करना होगा? कि this quotient group over this kernel, that this is this over k is isomorphic to g dash. सो अब ध्यान देना, अगर हमें जी ओवर के ये क्वेश्चन ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक जी डैश, तो हमें क्या, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट वन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन आइसोमॉर्फिज्म, कम से कम एक हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दें और उस आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव कर दें कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक, तो एक फंक्शन हम डिफाइन करें कुछ इस तरीके से कि हम उसको होमोमॉर्फिज्म दिखा पाए और वो वन वन ऑन टू फंक्शन हो। इस तरीके से हम इजिली प्रूव कर पाए तो हम इजिली कह पाएंगे दिस सेट इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। तो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिक इमेज मतलब जी डैश है, और कर्नल है। ये तीन चीजें हमारे पास है, उनको लेकर हमें ये दिखाना है कि जी ओवर के दिस क्वेश्चन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश।
सो लेट्स बिगिन, है ना। तो हमें सबसे पहला जो काम है एक मैपिंग डिफाइन करना है। तो मैपिंग कैसे, अच्छा, इन सब प्रूफ्स में मैपिंग कंस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव इन द मीन वी विल हैव टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो जो मैथमेटिशियन या फिर जो ऑथर्स वो कंस्ट्रक्ट कर चुके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग तरीके के फंक्शन डिफाइन करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पर एक ही टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बट आपकी जो टेक्स्ट बुक में है यू कैन यूज दैट दैट फंक्शन, उस टाइप से आप उसको डिफाइन करिए, यू कैन एबल टू गेट द रिजल्ट, है ना। तो हमको एटलीस्ट एक फंक्शन, एक आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्वेश्चन ग्रुप जी और की इज टू जी डैश हमें मिल जाए, हम कह पाएंगे कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। तो वो फंक्शन डिफाइन करना, तो मेन जो प्रूफ है वो यही है। मेन प्रूफ इज कंस्ट्रक्टिव मैपिंग। वो मैपिंग क्या है, तो उस मैपिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेट अस सी। सो कंसीडर कंसीडर द मैपिंग। ध्यान दीजिएगा कि हमने यह यहाँ यूज कर चुके हैं पहले ही होमोमॉर्फिज्म के लिए, तो हम इसके यहाँ पर कोई दूसरी मैपिंग ले लेते हैं। तो हम देखते जी, और दिस इज फ्रॉम जी ओवर के टू जी डैश। एक चीज ध्यान रखें, जी और के में किस टाइप के एलिमेंट है, के एक्स या एक्स, जैसे हमने जी और एच, तो एक्स एच टाइप के एलिमेंट है, कोसेट्स का कलेक्शन है। जी और एच इज द ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल द कोसेट्स, ठीक है। तो उनका कलेक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर के साथ में जितने भी कोसेट्स बन सकते हैं उनका कलेक्शन है जी और के में, और वो एक कोशेंट ग्रुप बनाता है, ठीक है, विद द ऑपरेशन विच इज डिफाइंड ऑन द कोसेट्स। सो तो दिस इज, तो लेट अस डिफाइन कि कैसे हम डिफाइन करेंगे, सच दैट इफ आई एम टेकिंग वन कोसेट फ्रॉम हेयर, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, अगर हमने के एक्स सपोज दैट एक हमने ले लिया, तो ये हमारा जो हमने कहा कि जो के एक्स है वो उसके एक्स पे मैप हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एक्स इज फ्रॉम फ्रॉम जी, सॉरी 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 सॉरी, एक्स इज फ्रॉम फ्रॉम जी। तो ध्यान दीजिएगा जो के एक्स है, जो हमारे पास जी ओवर के डिफाइंड है, जी ओवर के डिफाइंड है, दैट इज लुक्स लाइक दिस। एक्स एक्स के लिखो या के एक्स लिखो, तो ये हमने के एक्स यहाँ लिखा है, के एक्स सच दैट सच दैट दिस इज एक्स इज फ्रॉम जी, दिस इज द कलेक्शन। और ऑब्वियसली अगर एक्स जी का मेंबर है, ठीक है, एक्स जी का मेंबर है, तो एफ एक्स कहाँ का मेंबर होगा, एफ एक्स विल बी द मेंबर फ्रॉम जी डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास हर एक के एक्स के लिए यहां पर एक हमारे पास एफ एक्स होगा, और दैट विल बी बिलोंगिंग टू जी डैश। सो दिस इज द मैपिंग, दिस इज द वेल डिफाइंड मैपिंग वी कैन से, ठीक है। सो बिकॉज फॉर एवरी कोसेट वी हैव एन एलिमेंट इन जी डैश, for every coset we had, because the every coset will be with respect to some element ना, some element x ना, ठीक है। तो उस x एलिमेंट की रिस्पेक्ट में एफ एक्स ऑलरेडी भी डिफाइंड है, एफ एक्स इज मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, ओके। तो जब एफ एक्स पे अप्लाई होगा तो एफ एक्स मिलेगा, और एफ एक्स जी डैश का मेंबर हो जाएगा। इट मीन्स फॉर एवरी कोसेट which is belonging to g over k we have an element in G test. It means that, and that element will be unique, because we know that कि quotient is distinct और coincident। मतलब जो कोसेट होते हैं या तो वो डिसजॉइंट होंगे या फिर वो आइडेंटिकल होते हैं। we don't have any type of that repeated or at all or some common element नहीं होते, ठीक है। तो that will be the aspect, for it means for every coset we have a unique element in G dash। तो ये जो मैपिंग है दैट इज अ वेल डिफाइंड, आप सेपरेट इसको प्रूव भी कर सकते हो, और यू कैन जस्ट राइट इट इज अ वेल डिफाइंड मैपिंग। बिकॉज जो आप मैपिंग डिफाइन कर रहे हो वो मैपिंग होनी चाहिए, है ना। कैसे कुछ भी आप कंस्ट्रक्ट करके नहीं दे सकते, दैट शुड बी अ मैपिंग। और मैपिंग के लिए फॉर एवरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन वी हैव अ यूनिक एलिमेंट इन द कोडोमेन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैपिंग, ओके। सो जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो वेल डिफाइंड होता है। यहाँ पर जो आप लेना वो इस तरीके से लेना, फॉर एवरी कोसेट वी हैव बाई एफ एक्स, वी हैव बाई एक्स,
और फिर x के लिए हम एफ एक्स डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन जो के एक्स है वो मैप हो रहा है एफ एक्स वाले एलिमेंट में इन जी डैश। तो दिस टाइप जो मैपिंग होगी दैट इज अ वेल डिफाइंड मैपिंग। तो यू कैन इजिली यू कैन राइट हेयर दिस मैपिंग इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड में इट इज अ मैपिंग एक्चुअली, ये मैपिंग है ना, विदाउट, बिकॉज पहले तो मैपिंग एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, अब हमें हमें क्या दिखाना है, व्हाट वी हैव टू शो 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, ये दो तीन चीजें हमें शो करनी है। तो पहले तो हम ऑन टू की बात कर लेते हैं। इट मीन्स ऑन टू, है ना, वेल डिफाइंड, ये सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि बिकॉज फॉर एवरी एक्स वी हैव एफ एक्स एंड एफ एक्स इन जी डैश, तो ऑलरेडी जो हमारा एफ है दैट इज ऑन टू, तो देर इज नो नीड टू बी सो कि इट इज ऑन टू। ये जो हमने मैपिंग डिफाइन करा इट विल बी ऑब्वियसली इट विल बी एन ऑन टू। तो हमारे पास क्या बचा, 1 1 प्रूव करना, 1 1 प्रूव करना। ये चीज समझना, क्योंकि एफ इज ऑन टू, तो इट मीन्स फॉर एवरी एक्स द fx will be occupied whole the g dash, g dash पूरे पूरे g dash को ऑक्युपाइड कर लेगा। हर एक fx के लिए भी हैव एन x, है ना। तो इसलिए इसलिए ये जो है ऑन टू है, ऑलरेडी हमने ऑन टू लेके चले हैं, तो देयर इज नो नीड टू सो इट इज ऑन टू। ठीक है, सो पहले हम इसको वेल डिफाइंड प्रूव कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो वेल डिफाइंड मीन्स for uh, it means what meaning of well defined, for every element in this we have a g test and that will be unique, है ना, that will be unique। okay, so if we have, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमें मान लो वेल डिफाइंड प्रूव करना होता है तो हम कैसे करते हैं। अगर हमने कहा f फ्रॉम x टू y, एक मैपिंग डिफाइन करा, so if I am just taking 2 points x1 is equals to x2, so we can able to show that f of x1 is just equal to f of x2। अगर हम ये शो कर देते हैं तो we can say this is a well defined mapping। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। हमें पता तो है कि दिस इज वेल डिफाइंड बट वी हैव टू शो इट मैथमेटिकली। तो कैसे करेंगे, तो आई एम जस्ट टेकिंग let let two elements, I'm just taking ka and kb, this will be belonging to where g over k, such that कुछ इस तरीके से लेते हैं कि दोनों इक्वल है, दीज आर बोथ इक्वल, मतलब के ए इज जस्ट इक्वल टू के बी। अब हमें क्या शो करना है कि के ए और के बी की जो इमेजेस हैं वो भी सेम है ना, के और के बी की जो इमेजेस हैं वो भी सेम है। बिकॉज अगर दो एलिमेंट सेम है और उनकी इमेज डिफरेंट हो जाएंगी तो वो वेल डिफाइंड नहीं रह जाएगा। मतलब फंक्शन ऐसा तो हो सकता है बट फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता। एक एलिमेंट एक है, उसकी दो इमेजेस पता चल जाए हो जाए तो इट इज नॉट इज अ फंक्शन। तो अगर हमारे पास हम कह रहे हैं कि दो पॉइंट है या एक, हमने लेके चले कि दो पॉइंट एक ही है, तो उनकी जो इमेजेस हैं दैट इज विल बी आल्सो इक्वल, है ना, वो भी इक्वल ही होनी चाहिए। अगर वो अलग अलग हो गई तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है ना। तो ये चीज को भी हमें प्रूव करना है। आई एम गोइंग टू प्रूव दिस थिंग। ओके, सो इफ आई एम टेकिंग k इक्वल्स टू kb। ओके, एक चीज हमें पता है कि इफ वी नो फॉर वी कैन जस्ट से कि अगर हम कह रहे हैं कि एच ए इज जस्ट इक्वल टू एच बी है, ठीक, एच ए मतलब दो एलिमेंट्स हैं उनके कोसेट्स इक्वल हैं, तो ये तभी होता है जब ए बी इनवर्स विल बी बिलोंगिंग टू एच, ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच, ये होता है। ठीक, तो यहां पर हम कह रहे हैं के इज इक्वल टू के बी, इट मीन दैट you can say this AB inverse is belonging to the kernel key।
ओके, ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू द कर्नल के, और अगर कर्नल के से बिलोंग करता है, इट मींस द, इफ यू आर अप्लाइंग एफ ऑन दिस, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है और एक कर्नल का एलिमेंट है, तो दैट विल बी इक्वल टू द ई डैश, वो ई डैश पे मैप हो जाएगा, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। ये तो कर्नल की डेफिनेशन होती है। तो अगर दो कोसेट को इक्वल ले रहे हैं तो हमारे पास ये मिलेगा कंडीशन, और ये कंडीशन मिल गया, अगर ये कर्नल का एलिमेंट है तो वो आइडेंटिटी पे मैप होगा, इसका मतलब एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू ई डैश, है ना। अच्छा, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये सेपरेट हो जाएगा, दिस इज एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स, ऐसे हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई डैश। और फर्दर अगर हम कुछ आगे करना चाहेंगे, दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास हमें पता है कि जो एफ बी इनवर्स की मैपिंग होती है दैट विल बी इक्वल टू एफ बी का होल इनवर्स, ये होता है, दैट इज इक्वल टू इट मींस you can just say f b inverse is mapping is just equal to f b का होल इनवर्स, इसके ऊपर मैप होती है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसके एफ बी इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ ए एफ बी इनवर्स into एफ बी, ओके, इज जस्ट इक्वल टू ई डैश इंटू एफ बी। आप ऐसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई राइट साइड बाई राइट, राइट मल्टीप्लीकेशन बाई राइट मल्टीप्लीकेशन, ओके, ये तो हम इजिली कर सकते हैं। अब ये जब हमने करा, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, अगर हम इनको टुगेदर ले लेंगे तो हियर यू कैन गेट दिस इज ई डैश एंड दैट इक्वल्स टू ई डैश इनटू एफ बी। तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट रहता है, तो दिस इज एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी, ओके। और एफ ए मीन्स you can easily say this is equal to g of times ka, because ka is equals to fa, and here g of k times of b। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कोसेट्स इक्वल हैं तो उनके इमेजेस भी इक्वल आएंगे, इमेजेस भी इक्वल आएंगे, इट मीन्स दिस जो मैपिंग हमने ली है वो वेल डिफाइंड मैपिंग है, दैट इज दिस मैपिंग एग्जिस्ट, यू कैन से। So thus we can have, thus if Ka is just equal to Kb, and here Ka and Kb are belonging to G over K, so this implies this is G of Ka is just equal to G of Kb. Okay, so this you can say this proves that G is well defined. ऑन टू ऑलरेडी था तो वेल डिफाइंड प्रूव कर लिया हमने। अब हम इसको वन वन प्रूव करते हैं कि जी वन वन है कि नहीं। तो जो वन वन के लिए क्या है, इफ इमेजेस आर नॉट सेम, तो इनकी इफ प्री इमेजेस इज नॉट सेम देयर इमेजेस शुड नॉट इक्वल्स टू, ये होता है वन वन, है ना। मैनी वन नहीं, मतलब तो अगर दो दो पॉइंट्स अगर नॉट इक्वल है तो उनके जो इमेजेस है वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर दो हमारे पॉइंट्स अलग अलग हैं उनकी इमेज सेम हो रही तो मैनी वन हो रहा है, मतलब दो पॉइंट एक पे मैप हो रहे हैं तो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए। इसको दूसरी तरीके से हम देखते हैं, इफ इमेजेस आर सेम देयर प्री इमेजेस शुड बी सेम। इसको देखने का दूसरा तरीका है ना, तो हम इस तरीके से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनकी इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे, उनको दिखा देंगे कि उनकी प्री इमेजेस भी सेम। सो लेट्स प्रूव जी दिस वन वन, है ना, वन वन दिखाते हैं। सो हमने क्या करा, वी हैव जस्ट टेकिंग द इमेजेस ऑफ टू एलिमेंट्स, दिस इज के ए इज जस्ट इक्वल टू के बी, वो इक्वल है, और क्लियरली दिस इज के ए एंड के बी इज फ्रॉम क्वेश्चन ग्रुप जी और के। ठीक, अब हमने क्या करा, इमेजेस को इक्वल कर लिया, अब हमको दिखाना है कि के विल बी इक्वल टू के बी आल्सो। तो फ्रॉम हेयर यू कैन जस्ट से एफ ए इज जस्ट इक्वल टू एफ बी, or from here you can just take fa and taking f b inverse, you can say
दिस इज एफ बी इनवर्स। जैसे अभी हमने करा ना, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिए चले जाओ। और फ्रॉम हेयर यू कैन हैव एफ वी, एफ बी inverse, okay, and that is, you know, that identity. So from here you can just say fa, और ये फिर से अंदर चला जाएगा, तो you can just have look like this is f of b inverse is equals to e dash, and from here because ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, अगर होमोमॉर्फिज्म नहीं होती तो नहीं लिख पाते, होमोमॉर्फिज्म है तो यू कैन इजीली राइट दिस इज ए बी इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू ई डैश। तो अगर हम ये बात करें तो दिस इंप्लाई दिस इज ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू के, और ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है, तो यू कैन से दिस इज के ए इज जस्ट इक्वल टू के बी। ओके, सो दस वन वन इज प्रूव, दस जी ऑफ के ए इज जस्ट इक्वल टू जी ऑफ के बी, एंड दिस इंप्लाइज दिस इज के ए इज इक्वल टू के बी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फंक्शन हमारा ये वन वन भी है, हेंस जी इज वन। तो वन वन हो गया ऑन टू, है ना, यहां पर लिख भी सकते हो सिंस एफ इज ऑन टू दिस इंप्लाइज जी विल बी ऑन टू। ओके, सो जी हमारे पास ऑन टू है, वन वन है, वेल डिफाइंड मैपिंग थी हमारे पास, तो हम वन वन ऑन टू भी चेक कर लिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है, मतलब होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट्स सी कि जी preserves the composition in G over K and G dash। ओके, सो कंपोजिशन preserve मीन्स कि इनके बीच का जो कंपोजिशन है, इट मीन्स इफ यू आर टेकिंग टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस के ए इंटू के बी, तो इनकी जो इमेजेस हैं वो हमारे पास एफ आती हैं, है ना। इट मीन वी कैन जस्ट हैव एलिमेंट्स ऑफ के एफ ए, तो एफ ए और इसका जो कंपोजिशन होगा जी डैश का, जैसे एफ बी, ये कुछ इस तरीके का, क्योंकि इसकी इमेज ये आ रही है ना, इसकी इमेज ये आ रही है और जी, है ना। इसको लिखना तो इस तरीके से ही जी ऑफ के ए, है ना, इस तरीके से जी ऑफ के बी, कुछ ये तरीके से हमें दिखाना है ना। सो यू कैन आल्सो से, सो यही हमें कंपोजिशन दिखाना है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आई एम जस्ट टेकिंग जी के ए इंटू के बी, ये लिया। और वी नो दैट कि हमारा जो जो कोसेट्स होता है, कोसेट्स का जो प्रोडक्ट होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो इस तरीके से डिफाइन होता है, जैसे जी ऑफ के टाइम्स ए बी। अब यहाँ ए और बी के बीच में जी वाला कंपोजिशन है, जी का जो भी कंपोजिशन हो, ठीक है। और अगर हमारे पास जी ऑफ के बी है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ टाइम्स ऑफ ए बी, है ना। और क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो यू कैन इजिली से दिस इज एफ ए इंटू एफ बी, एंड क्लियरली यू कैन से एफ ए का मतलब हो गया जी ऑफ के ए, और एफ बी का मतलब हो गया जी ऑफ के बी, ठीक। तो क्योंकि एफ, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, है ना, तो होमोमॉर्फिज्म हो गया तो हम इसको भी एज अ होमोमॉर्फिज्म दिखा सकते हैं। तो दिस implies what? This implies g of ka into kb is just equal to g of ka into g of k। क्लियर? तो ये हमारे पास, तो इट मीन्स कि ये कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है। Hence g preserves composition। ओके, तो वन वन हो गया, कंपोजिशन प्रिजर्व कर रहा है ना। ऑन टू हमने देखा कि ऑन टू भी हो सकता है, अगर ऑन टू को प्रूव करना है कि हाँ ऑन टू कैसे ऑन टू है, वो चीज है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो लेट अस जी ऑन टू, उसको भी देख लेते हैं। तो इफ आई एम टेकिंग एनी एलिमेंट फ्रॉम जी डैश, उसके लिए हमको एक एलिमेंट, एक कोसेट चाहिए। फॉर एवरी, अगर हम कह रहे हैं ऑन टू, फॉर एवरी एलिमेंट फ्रॉम जी डैश फ्रॉम द कोडोमेन वी हैव एन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन, सच दैट कि वो एलिमेंट जो डोमेन में है वो एक्स पे मैप हो रहा है। तो हमें इस एक्स के लिए एक हमको कोसेट चाहिए के जी और के अंदर।
So I'm taking x. So this implies there exists y in G such that एफ वाई इक्वल्स टू एक्स। क्यों? क्योंकि हमारा एफ ऑन टू था, है ना। हर एक एलिमेंट जी डैश के अंदर उसके लिए वाई मिल जाएगा जी के अंदर। सच सच कि अगर एफ वाई पे ऑपरेट करो तो यू विल गेट दिस एक्स। सो क्यों? फॉर एफ फ्रॉम जी, जी डैश इज ऑन टू, ऑलरेडी हम ऑन टू लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि वाई इज बिलोंगिंग टू जी ओवर के। है ना, क्योंकि दैट विल बी एलिमेंट फ्रॉम जी, और जो कोसेट है ओवर द के, वो के एक्स या के वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एलिमेंट इसका हो जाएगा। तो अगर हम इस पे अब ऑपरेट करते हैं, सपोज दैट के ऑफ वाई ऑपरेटेड हेयर, यू विल गेट एफ वाई, एंड इस एफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स। तो इस एक्स पे मैप होने के लिए हमको क्या मिल गया? एक के वाई, है ना, के वाई हमको मिल गया। तो दिस implies यू कैन से फॉर एवरी एक्स इन be every x in G, every x in G, ठीक है, we can there exist k y belonging to G over k such that this is G of ky is just equal to fy, है ना। So it means this is onto, that G is onto। ओके, सो अब हमारे पास वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, हमारे कम होमोमॉर्फिज्म पे प्रेजेंट है। तो बस कुछ नहीं बचा, इट मीन्स कि जो ये हमने जी डिफाइन करा है, जो कि जी और के से जी डैश के ऊपर, वो एक आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिंग है। सो दिस implies you can see isomorphism onto G dash. Isomorphism from, just a minute, isomorphism from G over K to G dash, to G dash. Okay, so hence you can say this G quotient group G over K is isomorphic to G dash. So this it proved. Okay, so this is some lengthy but not tough, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसको प्रूव करना, या ठीक है, एक दो बार आप इसको लिख के देखिए खुद से, और आई होपफुली कि आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। आपको एक मैपिंग डिफाइन करनी है जी, विच इज फ्रॉम जी ओवर के टू जी डैश, एंड दैट विल हैव टू शो वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व, बस। that will be isomorphism, and you can say able to say this is this G over K, this quotient group is isomorphic to G dash. So this is your fundamental theorem of homomorphism, and that is very nice result, very nice थ्योरम। तो होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे, और मैं भी समझा पाया होऊंगा, मैं भी कोशिश किया हूँ आपको समझाने की। तो आई थिंक यू कैन एबल टू डू नाउ। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप working in mathematics. Thank you so much.